Now, the second lecture on work, energy, and power is the power. What is power? Power is defined as the rate of doing work. एक मिनट बेटा इस डॉगी को ना. Now, the second lecture on work power and energy is the power. You need to understand what is power. Now, what is power, बच्चों? Power is called as the rate of doing work. मतलब कितने fast आप काम कर ले रहे हो. That is called as the power. So, power is equal to work done divided by time taken. Right? This is the power. Now, the power can be a constant power. It can be also the instantaneous power. इंस्टेंटेनियस पावर मतलब पावर टाइम के साथ चेंज हो रहा है. सो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आपको लिखना होगा दैट इज इक्वल टू dw by dt. That means the rate of doing work with respect to time at that instant. What is the formula for the work done? F dot S divided by dt. See, suppose if f is a constant, I'm not saying that if f is not a constant, you cannot do this. If f is a constant, it is equal to rate of ds by dt. What is rate of displacement with respect to time? That is velocity. So I've got another formula. If the force is a constant and the displacement is taking place and the body is having a velocity, in that case, the instantaneous power of the body is given by the formula F dot V. Again, a dot product, beta. Right? F dot V is another formula for the power. Right. Now, what is the unit of the power? You know, SI unit of the power is equal to what? Oh, what is what? What is equal to what? मतलब होता है that is 1 joule divided by 1 second. That is defined as what? James Watt के नाम पर आया है. हायर भी तो चाहिए, ऊपर वाला भी तो चाहिए पावर. बड़े बड़े पावर्स होते हैं, है ना. सो 1 किलोवाट 1000 वाट होता है. 1 मेगावाट 10 टू द पावर ऑफ 6 वाट, है ना. यानी 10 टू द पावर ऑफ 3 किलोवाट. हॉर्स पावर्स वैल्यू लेते हैं दैट इज 746 वाट. 746 यानी 750 के आसपास ले सकते हैं, है ना. तो हम लिख सकते हैं 1 हॉर्स पावर. जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करने के लिए 3/4 किलोवाट लिख सकते हैं बेटा, लेकिन नॉट द वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू 746 वाट. नाउ we have got when an agent delivers a power at a constant rate, the average power is equal to the instantaneous power. Right? This is a very important fact. If the agent delivers power at a constant rate, the average power is equal to the instantaneous power. And the power is a scalar quantity. Okay? Now, how do you calculate the power of a body? Now, suppose I have got a graph which is in the form of, say, work and the time. I should not taken this graph. Just a minute. Let me change this graph because time negative पे जा रहा जो possible नहीं है. एक minute. I have to take the graph. Just a moment. I'll take this graph. Okay, the x-axis I have got the time and the y-axis I have got the work done. And if I have the work done and time के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ मेरा बन रहा है, ठीक है, या उल्टा ग्राफ, कैसे भी ग्राफ बन रहा है, the slope of the work time graph is going to give me the power. Suppose if I have the angle is equal to say theta, in this graph, the value of tan theta will give me what? That is equal to work divided by time, and that is equal to मेरा हो जाता है power. So work time graph अगर आपको दिया गया है तो उसका स्लोप निकालो, पावर मिल गया. लेकिन अगर आपके पास में पावर ऑन द y एक्सिस, टाइम ऑन द x एक्सिस दिया हो, तो इस पर जो भी ग्राफ बनेगा तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. सो इस केस में आपको एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू द वर्क डन. Right? Okay. So this is what is all power about. Okay. But अगर हमारे पास पावर वेरिएबल है, if power is variable, power is
वेरिएबल आ जाता है बेटा, तो वेरिएबल पावर के लिए it is work done which is equal to p dot dt या p into dt, sorry p dot dt नहीं होगा, p dt होगा, टाइम टेकन इज फ्रॉम टाइम t1 to t2, इंटीग्रेट कर दो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्क डन ना बेटा, अगर अपन कोई भी काम करते ना तो पावर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो इसीलिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, once we have defined this power, we need to talk about the conservative and the non-conservative force, है ना। पावर का डेफिनेशन से हो गया, इस पे अपन को प्रॉब्लम्स ही करना होता है। नाउ आई नीड टू डिफाइन समथिंग ऑन द conservative and the non-conservative force. Now, what is a conservative force? If the work done depends on the initial and the final point and not on the path, then it is called as the conservative force. Suppose I've got a body initially placed at A. Initially, the body is placed at A and it can go from A to B along the direction. It can go along the first direction. It can go by anyway, many paths, infinite number of the path. But when you calculate the work, if it depends upon the initial and the final positions only and not on the path, any path you go, the work done, if it is the same, then it is called as the conservative force. That means this here, the work done does not depend on path. It depends on only the initial and the final position. Now, this conservative, non-conservative force, this will depend on, the work done will depend on the path it takes. Work done depends on the path. Okay, what are the examples of the conservative force? So you can say that the electric force, या तो let it be more specific, it is the electrostatic force. Electrostatic force is a conservative force. Then you have got the spring force, which is an example of the conservative force. Then you have got the gravitational force, that is also a conservative force, right? Now, if you talk about any other force, which is friction, etc., these are all the non-conservative forces. Yeah. Central force. If the force is acting on the line joining the center of the two bodies, it is called as the center force. माने जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े थे ना बेटा क्लास 9th में, याद आया? हमारे पास दो बॉडी हुआ करता था, दो बॉडीज, मास है m1, और दिस बॉडी इज इक्वल टू से m2। हाँ, बड़े बड़े मासेस होते हैं, हाँ, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सब कुछ, तो हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है ना। सेंटर ऑफ मास पहली बॉडी का और सेंटर ऑफ मास सेकेंड बॉडी का जोड़ दो। सेंटर ऑफ मास का मतलब, इसके बारे में अपने पास पूरा चैप्टर है, लेकिन कुल मिला के समझ में ये आनी चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू सिट, पूरा मास ऑफ द बॉडी जहां पर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो। बाकी अब अपन जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। ओके, सेंटर ऑफ मास इसका O1 है और इसकी जो है दैट इज सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू O2 है। ठीक है, O1 और O2 के बीच में एक सिंपल लाइन बना लीजिएगा। मुझे पता है कि M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा और M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स रहता है ना, फोर्स है तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि ये जो फोर्स है ना, ये जो सेकंड बॉडी को फर्स्ट बॉडी ने अट्रैक्ट किया ना, तो इस डायरेक्शन पे अट्रैक्ट करेगा, एकदम इसी लाइन पे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अब मान लीजिएगा सेकंड बॉडी चुपचाप थोड़ी बैठा है, वो भी तो बोलेगा फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ आओ,
तो अट्रैक्ट जब करेगा तो उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना उसी लाइन पर होगा. दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल फोर्सेस. सो सेंट्रल फोर्सेस कौन कौन है? तो सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका सेंट्रल फोर्सेस है ना. तो ये सब आपके सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं. ठीक है, अब ये सेंट्रल फोर्सेस सारे जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होंगे वो सारे कंजर्वेटिव हैं, सारे कंजर्वेटिव हैं, राइट. और जो कंजर्वेटिव हैं वो सारे सेंट्रल होंगे या नहीं होंगे, है ना. तो ये जरूरी रखना याद कि सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं लेकिन सारे के सारे कंजर्वेटिव, जैसे स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है लेकिन वो सेंट्रल नहीं है. ठीक है, तो सारे कंजर्वेटिव सेंट्रल नहीं हो सकते. ठीक है, और जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं ना तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में आता है. अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नाम का चीज उस पर होगा ही नहीं, है ना. तो याद रखना, अगर मैंने कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी बोला, कहीं बुक में कहीं क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिस्क्रिप्शन मिला कि इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल एनर्जी लगानी है, तो समझ जाना कि ये कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तभी इस पे पोटेंशियल एनर्जी आई, अन्यथा इस पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फोर्स कंजर्वेटिव भी होगा, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा. ठीक है, ओके. Now let us do some of the numericals which is related to power, right? Okay. पहला जो हमारा क्वेश्चन है, it says that elevator यानी lift weighs 500 kg and is to be lifted up. इसको नीचे ला लेते हैं. Is to be lifted up with a constant speed of 0.4 meters per second. What should be the minimum horsepower if the motor should be used? ठीक है, कितने हॉर्स पावर का मैं मोटर यूज करूं ताकि मेरे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट में कुछ लोग हैं, उसका मास 500 kg है और इसे ऊपर कितने में लेके जाना है? 4.4 मीटर्स पर सेकेंड से हमें लेकर के जाना है. पावर कितना लगेगा? ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमने देखा था कि फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना. तो पहले मुझे फोर्स चाहिए, मास इंटू फोर्स. यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी लिफ्ट का जो वेट होता है ना वही फोर्स है, उसी को तो लिफ्ट करना हमें. तो फोर्स कितना है? दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास दिया हुआ है 500 kg, है ना. और क्या दिया हुआ है मेरे पास? जितने न्यूटन है, जी का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10 लेते हैं हम कन्वीनियंटली. सो 5000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. अच्छा, कितनी वेलोसिटी से इस लिफ्ट को ऊपर लेके जाना है? तो बोले 0.4 मीटर्स पर सेकंड से. ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाती है ना. तो 5000 into 0.4, so you get it as 5000 into 4 divided by 10, that is equal to 2000 watt. यानी 2 किलोवाट का मुझे पावर लगाना पड़ेगा. और इतना कम से कम, इतना हॉर्स पावर का मैंने उस पर मोटर लगाया तो चलेगा लिफ्ट. ठीक है, लेकिन मोटर का जो स्पेसिफिकेशंस होता है ना जनरली हॉर्स पावर में होता है, और यहाँ पर भी मुझे हॉर्स पावर के ही निकालने की बात कर रहे हैं, है ना. तो हमें क्या पता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 that much of watt, which can be 750 watts approximately हम ले सकते हैं. So 3/4 of kilowatt. So 1 kilowatt is equal to 4/3 HP, और HP को पावर में निकालेंगे, जो पावर हमको निकला है 2 किलोवाट को, अगर हम हॉर्स पावर में निकालेंगे so that is equal to 8/3, that much of horse power का हमें वैल्यू का लगाना पड़ेगा. ठीक है. Now the second question. A second question says that a car of mass 2000 kg is to be lifted by a distance of 30 meters by a crane in 1 minute. Second crane does the same job in 2 minutes. Now the question is, क्या दोनों ने सेम फ्यूल कंज्यूम करना है या अलग अलग फ्यूल कंज्यूम करेगा? भाई सेम क्रेन is to be lifted by same mass. So दोनों के केस में जो एनर्जी कंजम्पशन होनी है दोनों तो सेम ही होना है बेटा.
क्या डिफरेंट होगा, क्योंकि एक 1 मिनट में लिफ्ट कर रहा है और दूसरा 2 मिनट में लिफ्ट कर रहा है। जो 1 मिनट में लिफ्ट कर रहा है उसका पावर नेचुरली ज्यादा होगा, और जो 2 मिनट में लिफ्ट करता है ना, तो उसका जो पावर होगा वो कम हो जाएगा। चलो, तो हम क्रेन 1 की बात करते हैं। तो क्रेन 1 1 मिनट में लिफ्ट करता है, और क्रेन 2 क्या करता है, 2 मिनट में लिफ्ट करता है। बच्चा, तो यहाँ आप देख रहे हो कि क्रेन 1 के केस में वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट क्रेन। सो वर्क डन के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो व्हाट इज द फोर्स डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? एक्चुअली यहाँ पर फोर्स हो जाती है आपकी mg, और हाइट है 30 मीटर्स। सो मास इज 2000, g की वैल्यू 10 और h अपन ने 30 लिया। सो द आंसर कम्स टू बी 6 into 10 to the power of 5 joules. ओके, सो वर्क डन पता है, और टाइम हमारे पास 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। So 6 into 10 to the power of 5 divided by 60. So the power comes to be 10 to the power of 4 watt. यानी 10 into 1000 watt, so 10 kilowatt. ठीक है। जब वही क्रेन ने दूसरा क्रेन आया और सेम कार को लिफ्ट किया सेम 30 मीटर से, लेकिन इस केस में उसको 2 मिनट का समय लग रहा है। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड्स। So power is equal to work done divided by time taken. So when we calculate, we get the answer as 5 किलोवाट। सो दूसरा क्रेन काम वही कर रहा है, समय ज्यादा ले रहा है, तो पावर उसका कम। ठीक है। Now we come to the third question, बच्चों, a tube well. Now it is pumps out 2004 kg water per minute. If the water is coming out with a speed of 3 meters per second, what is the power of the pump? And how much work is done if the pump run for 10 hours? ठीक है, ट्यूबवेल है भैया आपके घर पे, खेत पे लगा हुआ, और इसमें 2400 kgs ऑफ वाटर आता 1 मिनट। तो कितना मास आ रहा है पानी का 1 मिनट में? 2400 kg पर मिनट। तो 1 सेकेंड में कितना पानी आएगा? 2400 डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स है ना। तो आपने 60 से डिवाइड किया, 0 0 कटा, तो आपको 1 सेकेंड की बात करो तो 1 सेकेंड्स में बच्चा आप लोगों को मिल जाता है पानी, दैट इज 40 kg। ठीक है। जब पानी बाहर आता है तो 1 सेकेंड में उस बाहर आने वाले पानी का एनर्जी कितना होगा? ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पीड दिया है। एनर्जी मीन्स हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होगा भैया। पानी बाहर आ रहा है, उसका स्पीड हमें पता है, तो हम आराम से काइनेटिक एनर्जी 1 सेकेंड में उतना पानी का कितना होगा वो निकाल सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? सो पर सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो हाफ एम वी इंटू स्क्वायर, सो 180 जूल्स पर सेकेंड, दैट इज द पावर ऑफ द पंप। सो इसका मतलब 180 वॉट हो गया। ठीक है, तो हमने पावर निकाल ली। अब मानते हैं कि ये जो पंप है ये चला पूरे 10 आवर्स के लिए, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो पावर 1 सेकेंड के लिए मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 180 जूल्स पर सेकेंड, दैट इज 180 वॉट। Time, I want 10 hours. In 1 hour, I have got 3600 seconds. So I run this pump for 10 hours. So the answer will be equal to 180 into 10 into 3600 joule. इतनी सारी एनर्जी खर्च होगी जैसे हमने पंप को 10 आवर्स के लिए चलाया तब। Now the fourth question, a truck of mass 10,000 kg, काफी बड़ा सा ट्रक है, it is climbing up an incline with 150 with a speed of 36 kilometers per hour. Find the power of the engine. Take g is equal to 10 meters per second बोला है, और फ्रिक्शन इसमें नेग्लिजिबल, मतलब फ्रिक्शन को हमको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ट्रक है 10,000 kg का, इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा है, यानी कोई पहाड़ वगैरह चढ़ रहा होगा। फ्रिक्शन जब हमें नहीं लेना है तो एक फोर्स इस पर एक्ट करता है, और ये जो फोर्स होता है ना बेटा, ये कितने के इक्वल होता है? फोर्स वाले चैप्टर में हमने बहुत कुछ किया है। mg नीचे ऐड कर रहा है और बाकी सब कुछ हमने रिजॉल्व जब कर दिया ना,
तो mg sin थीटा यहाँ और mg cos थीटा यहाँ पर लगता है। तो ओनली फोर्स विच इज जिसके अगेंस्ट उस ट्रक को चढ़ना है दैट इज mg sin थीटा। फ्रिक्शन को हमने कंसिडर नहीं किया। तो एक ही तो फोर्स है जो नीचे खींच रहा है, बस उतना ही फोर्स मैंने ऊपर लगा लिया तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। ट्रक को कह रहा है कि वो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यानी स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। स्पीड कब कांस्टेंट होता है बच्चों? जब हमने अप्लाई किया फोर्स और उसके ऑपोजिट में लगा हुआ फोर्स दोनों अगर इक्वल होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट है और दूसरी चीज फ्रिक्शन है ही नहीं। हाँ, तो एक अकेला फोर्स जिसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो मैंने फोर्स निकाल ली भैया, F इज इक्वल टू m लगाया 10,000, g की वैल्यू 10 बोला उसने, और sin थीटा चाहिए। देखिए साइन थीटा इस क्वेश्चन में कहां लिखा हुआ है? इसमें आपसे बोला गया है द इंक्लाइन इज 1/50। इसका मतलब ये निकलता है कि साइन थीटा होता है तुम्हारा 1/50। तो मैंने लगा लिया वैल्यू 10,000 इंटू 10 इंटू 1/50 यानी कि 2000 न्यूटन। तो कितना पावर इस ट्रक को लगाना पड़ रहा है? तो 2000 न्यूटन। लेकिन मुझे तो पावर निकालनी पड़ेगी ना। तो पावर कितना के बराबर होता है? तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ट्रक की स्पीड मुझे दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे मुझे मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कर लिया, 5/18 से 10 मिल गया। तो आपको जब पावर निकालनी हो तो हमें चाहिए फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स की वैल्यू है 2000 न्यूटन, वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 20 किलो वॉट। ओके बच्चा, तो आज इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है? पूरा पावर पढ़ा है। पावर का डेफिनेशन पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया। ठीक है, आप चाहिए और एक्सरसाइज को पूरा अगर आपको बनता है पूरा बनाइए, रीडिंग जरूर कीजिएगा पहले और उसके बाद जो भी डाउट होगा सेंड कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।